Let me show you its aggression first before pointing out at the cons. But I don't know what was Mahindra thinking back in 2022. So now let's hop into the topic, one of the main topics. Guys, we've purchased the XUV 700 in October 2022, and it's been almost 2 years that I've been driving this car, and it's been a pleasure driving this car. It's very comfortable and everything. I will share you my verdict whether you should buy this car or not. And after 3 major servicings done, 20,000 plus kilometers of my driving experience in all kinds of terrain, I would like to share my ownership experience with you. To mention that this car comes with its own true horsepower from Mahindra for the first time, which I have experienced is, and it's incredible. I don't think that any SUV in this segment or even in the 50 lakh segment can beat this SUV if you ride it in the correct way. So stay tuned, and if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and do like a video. Speaking about the design, काफ़ी लंबा चौड़ा है, 4695 मिलीमीटर्स लेंथ में है, जो कि काफ़ी लंबा आता है अपने इस सेगमेंट में. 1795 millimeters का height है. Now the aerodynamics is well engineered into this car, absolutely incredible on higher speeds. My personal record has been 200 kmph in this car, and I think it has a well over potential of nearly 220. अब बहुत stable है. I think it's the most stable car I have drove in SUVs अभी तक in this Indian market. 2750 का इसका व्हील बेस है, जो कि ये आपको काफ़ी चौड़ा लुक देता है रोड पे और काफ़ी स्पेस ऑफर करता है अंदर से भी. 1890 का ओवरऑल विड्थ है अपार्ट फ्रॉम द व्हील बेस, विच इज़ क्वाइट मैसिव. So speaking about wheelbase, with a lot of wheelbase comes a lot of space. So let's find out. So this is the 5-seater variant, and you get 240 liters of boot space, and you can carry a lot of luggages for your travel pretty much easily. And have a look on the rear seats. जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है. 3 बंदे आराम से आ सकते हैं, और जो थोड़े पतले हैं, जो 5'7", 5'6" के नीचे है, 4 बंदे भी आराम से आ सकते हैं इस पर. एंड इट्स वन ऑफ द वाइडेस्ट SUVs, क्योंकि वाकई में आई हैव कंपेयर्ड इट विद द अदर SUVs in its segment, and I felt that this had much leg room and a better thigh support. So now let's talk about the topic which plays one of the major roles in deciding for a vehicle, जो कि है performance and efficiency का. So since we are talking about performance, let me show you its aggression first before pointing out at the cons. So 100 तो भाई यूं ही पहुंच जाता है, but we have traffic ahead, so I wouldn't push it more. So as you know, this XUV 700 comes with a 2.0 turbo TGDI engine, which has a direct fuel injection, and it packs 200 horsepower. Exact figures are 197 point something, but yeah, you can call it as 200. It's a very refined engine, and there's no vibrations and no cabin noise whatsoever. Also, since it's a petrol manual, the variant which I have. So despite of the smoother engine and everything, I would still rate it as a 7 out of 10, mainly because of the mileage it produces. Since it packs 200 horsepower at 380 Newton meters of torque, and it's a very big SUV. So it's pretty much logical enough to say that the mileage reduces because of the weight it carries and the power it produces in such a weight. This is where the car gets, cornered by the other rivals of its segment. In city, as you can see, it produces honestly about 6 to 8 kmpl of mileage. No matter how you're riding, कितनों भी आराम से चले जाओ तो भी 8 निकल के आएगा, 8 साढ़े 8. इससे ज़्यादा आप सिटी में नहीं चला सकते हो. हाईवेज़ में बोला जाए तो 10 to 12 या इवन 14 kmpl अगर आप डीजल वर्जन में हो, आप निकाल लोगे. फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, रोज़ ही मेरा ऊपर नीचे होता है गाड़ी को लेके, तो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे में आई फिल इन अबाउट 1200 रुपीज़ पेट्रोल इन इट. एंड मेरा डेली का रनिंग होगा अराउंड 60 किलोमीटर्स. तो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे में अगर आप 1200 रुपये पकड़ लेते हो, तो नियरली 18,000 रुपये का महीना का पेट्रोल ये अकेला पी जाता है. अब बात करते हैं इसका सर्विसेज का. अभी तक इसका बस
4 सर्विसिंग हुए हैं, जिनमें से 2 फ्री सर्विसिंग रहे थे एंड जिनका लेबर कॉस्ट आ गया था अराउंड 2000 रुपीज़। सर्विसिंग जो थर्ड होता है, ब्रेक पैड चेंज होते हैं बेसिकली, विच आई थिंक वाजंट नीडेड क्योंकि उतना रफ़ यूज़ था नहीं मेरा, बट ठीक है, कंपनी मेजर्स है। तो ब्रेक पैड इसके 2500 आसपास आ जाते हैं। एक ब्रेक पैड, फ्रंट ब्रेक पैड जो होता है, पीछे के भी लगभग 2000-2500 ही आसपास है। एंड अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी कॉस्टली व्हीकल टू मेंटेन। ऑफ कोर्स इन द एंड ऑफ द डे इट्स महिंद्रा, सो मेंटेनेंस के मामले में ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। बात करते हैं इसका इंटीरियर का, फिट एंड फिनिश का, तो ये गाड़ी लिए हुए 2 साल हुए हैं। अब 2 साल पहले और अभी तक क्या फ़र्क आया है, विल लेट यू नो इन डिटेल। सो दीज आर ऑल हार्ड प्लास्टिक्स। AX5 के वेरिएंट्स में सब हार्ड प्लास्टिक से ऊपर से नीचे, कोई ग्लॉसी फिनिश आपको नहीं मिलता है, मैट फिनिश है। बट जिनका पर्पस यूटिलिटी है, जो पूरा करना है, जिनको ज़्यादा वो सब का नीड फील नहीं होता, इट्स आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये थोड़े से जो वाइट फिनिश में पार्ट्स है ये थोड़े गंदे हो जाते हैं। सो नाउ फिट एंड फिनिश ये काफ़ी अच्छा है, बट अगेन आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कभी कभी व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग स्पेशली, तो अगर आप बहुत बड़े गड्ढे या बम्पर या किसी से जाते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन का इनमें से आवाज़ आता है, जिसको ऐसे करके या कुछ अपने हाथों से, जो हमारा इंडियन नुस्खा है उसको करके फिर ठीक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा वाइब्रेशन मेरे को कंपेयर टू, अब ऑब्वियसली जब नया कोई गाड़ी लेते हैं तो उसमें तो उतना कुछ होता नहीं है, बट सिंस the wear and tear takes place, थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा है आई फील, बट स्टिल द केबिन इज वेरी क्वाइट, वेरी आइसोलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रक्स भी जा रहे हैं आसपास, बट कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ वेरी टाइडली डन। बहुत ही प्रीमियम लुक दिया गया है इस गाड़ी को, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन इट्स सेगमेंट। वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, आई कुडंट अंडरस्टैंड ये कंट्रोल्स यहाँ पूरा खाली रख के, साफ रख के कंट्रोल्स उधर शिफ्ट कर दिए, क्रूज़ भी नहीं दिए। अभी वाले मॉडल में क्रूज़ आ गया है, कंट्रोल्स भी आ गया, बट आई डोंट नो व्हाट वाज महिंद्रा थिंकिंग बैक इन 2022। ये किन पैमानों पे ये इजी टू यूज़ लगेगा वाइल ड्राइविंग, स्पेशली फॉर द ड्राइवर। ये क्लस्टर का कंट्रोल्स उधर दे रखा है, यहाँ खाली छोड़ दिया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई डिडंट लाइक। बट अभी भी अगर सर्विस सेंटर पे जाओ और उनको पूछो, उनको अपग्रेड के लिए कि कैन आई प्लीज़ इंस्टॉल अ क्रूज़ हियर, ये जो भी, और सारा दुनिया जानता है कि यार बहुत जगह काम हो रहा है इसका, ईजिली अवेलेबल है हर जगह। तो इफ़ अ लॉयल कस्टमर वांट्स टू गेट इट इंस्टॉल्ड, व्हाई कांट ही और शी गेट इट इंस्टॉल्ड फ्रॉम द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर? ये महिंद्रा क्यों रोक रखा है? एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग AX5 वेरिएंट्स विथ क्रूज़ विथ ऑल द कंट्रोल्स नाउ फ्रॉम 2024, I mean, what is the logic? I go to the service center और वहाँ वो कहते हैं कि नहीं, महिंद्रा अलाउ नहीं करते अब ये। तो ये सब कुछ माइनर चीज़ें हैं जो फेस करना पड़ता है। एंड टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, दिस कार इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव कार, इट्स अ वेरी इजी टू ड्राइव कार। स्टेयरिंग व्हील जो इस पर मिलता है, ये टी-कट स्टेयरिंग व्हील है एंड इट इज़ वेरी लाइट। ऑल्दो पावर स्टेयरिंग है AX5 वेरिएंट में, आई थिंक AX7 से इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील्स आ जाते हैं, बट जो पावर स्टेयरिंग है महिंद्रा जो अपने न्यूअर जनरेशन के गाड़ियों में दे रहा है, इट इज़ वेरी रिलायबल एंड इट इज़ वेरी गुड। आई हैव फेल्ट अ ड्रास्टिक मैसिव चेंज फ्रॉम स्कॉर्पियो, फ्रॉम द प्रीवियस स्कॉर्पियो टिल द न्यूअर जनरेशंस एंड द स्कॉर्पियो N, और अभी XUV 700 भी। सो द स्टेयरिंग व्हील हैज़ बीन सो मच इम्प्रूव्ड कि आपको हर टर्न्स में लेन चेंज करते वक्त, इवन यू टर्न्स में, शार्प टर्न्स में मैनूवर करने में भी कोई इतना हैवी एफर्ट लगता नहीं है। पार्ट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। AX5 एंड बिलो में आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलता है, जिसका कुशनिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत आराम है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये प्रीमियम सीट कवर आई हैव यूज्ड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ब्रांड, बट ये और भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, आई हैड मेड अ रोड ट्रिप टू कैलकाटा विच इज़ अबाउट 400 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस, और काफ़ी आराम से गए थे। आपको एक ज़रा भी वो नीड फील नहीं होगा कि गाड़ी रोक के स्ट्रेच आउट कर ले, थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी नहीं है। गाड़ी इतने आराम से जाता है। एंड इन फैक्ट इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस,
actual road king, I would give the crown to XUV 700. Not because I'm an owner. जो भी इससे पहले भी SUVs चलाएंगे. In fact, I had the Ford Endeavor. I sold it and I bought XUV 700. उसमें उतना, क्योंकि देखो Ford है, अब उसमें टॉर्क ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो वो वाइब्रेशन फील होता है आपको केबिन के अंदर. इसका रिफाइनमेंट इतना अच्छा है कि आपको कुछ भी फील नहीं होगा. लगेगा आप बस बैठे हुए हो, आप बस स्टेयरिंग को मैनूवर कर रहे हो और आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन. ये इतना कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है आप. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार. जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, इसको ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिल चुका है फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट. एंड मेरे अपने भी रीजंस है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड कम अक्रॉस सर्टन सिनेरियोज जहाँ पे आई रियली केम टू नो अबाउट इट्स बिल्ड क्वालिटी and which was really good and unbelievable. So first things first, और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है which I am about to show you. ये जो छोटे छोटे दाग आपको दिख रहे हैं, ये 20 to 25 स्पीड के ऊपर ही लगा है, जहाँ पे लगा है इंजन को लगा है, नॉट टू मेंशन. काफ़ी माइनर आपको दिख रहा होगा सब कुछ. अगेन इफ़ यू कैन सी हियर अ लिटिल बिट, एक स्कॉर्पियो क्लासिक वाला स्कॉर्पियो ऑफिशियल का गाड़ी इससे हल्का सा टच हो गया था वाइल पार्किंग. एंड उसके जो रियर बम्पर होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, उससे लगा था. स्टिल जो इसका डिज़ाइन आ रहा है आपको दिख रहा होगा कर्व, उसमें भी कोई तरह का फ्यूज डेंट नहीं पड़ा, बट थोड़ा सा लगा है. और ये जो आपको दिख रहा है, ये रियर बम्पर में है. कम से कम 40 से 50 के स्पीड में आके एक स्कूटी वाले ने इसको इम्पैक्ट दिया. ज़रा सा डेंट तक नहीं आया है, बस एक उसका स्क्रैच लग गया था विच वी हैड वाइप्ड आउट. बट ठीक है, थोड़ा सा तो पता चलता ही है. एंड देन अगेन दिस स्क्रैच विच यू आर सीइंग, ये मेरे बैक गेट में हो रहा. मेरा बैक गेट, वहाँ से बैक करते वक्त, निकालते वक्त एक होंडा सिटी को मैंने ही थोड़ा सा लगा दिया था. एंड आई डोंट नो मेरा ध्यान कहाँ था व्हेन आई वाज रिवर्सिंग. लिटरली इतना सट गया वो गाड़ी का फ्रंट बम्पर, सामने से ऐसे उठ सा गया, इतना ज़ोर का इम्पैक्ट था. बट स्टिल अगेन नो डेंट. एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका पेंट क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है. ये जो दीवारें आपको दिख रहे हैं, मेरा ड्राइवर ऑलमोस्ट रोज गेट खोलते वक्त कितने बार दीवार में ही हैज़ स्ट्रक इट, बट कहीं भी आपको दाग नहीं दिखेगा. इसका पेंट क्वालिटी इतना अच्छा है. ओवरऑल क्वालिटी का, जो बिल्ड क्वालिटी का बात करें, इट इज़ कमेंडेबल एंड आई रियली लाइक दिस. Before heading towards the final conclusion, guys, I'd like to mention one thing. Whatever information provided in this video is truly and purely based on my experience on my variant of XUV 700 AX5 petrol manual, which is the 2022 model. So some scenarios might differ from other videos on YouTube. So coming towards the final verdict. तो अगर आप वाकई में इसको लेने का सोच रहे हो, सो जस्ट गो फॉर इट. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट SUVs I've ever come across. I drove the Scorpio N, I drove the Scorpio Classic, I drove the Fortuner. जो भी आप कह लो, from my personal experience, this is the most value for money product in the market right now. This is one of the best SUVs in the Indian market right now. अगर आप 17, 16, 18 लाख आसपास क्रेटा का सोच रहे हो, तो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो एंड इसके बारे सोचो. ये फुल साइज SUV है, फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा, स्पेशियस है, सारा कुछ है. बट एक रिकमेंडेशन मेरे तरफ से ये ज़रूर है कि अगर आप फैमिली पर्पस के लिए, यूटिलिटी पर्पस के लिए देखना चाह रहे हो, आपका ड्राइविंग ज़्यादा है रोज़ का, तो डू गो फॉर द डीजल वर्जन. इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू. और अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हो, आपको ड्राइविंग का वो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको वो ग्रंट एग्रेशन चाहिए वो गाड़ी में, then only go for the petrol version. But again, my recommendation would be for the diesel. So yeah. So video अच्छा लगा हो guys, तो don't forget to hit the like button and do subscribe if you are new to the channel. And happy pujas. Thank you.